नमस्ते दोस्तों। हाल ही के दिनों में एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो है एक लड़की का जो कि बेंगलुरु से बिलोंग करती है और उसने ज़ोमैटो से जो है वो फूड ऑर्डर किया था, लेकिन जो डिलीवरी बॉय था उसने उसे मारा है, ऐसा उसका कहना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। तो ये लड़की जो है इसका नाम है हितेजा चंद्रानी, जो कि एक ब्यूटी एंड फैशन इन्फ्लुएंसर है। ये उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो स्टोरी है ये पूरी क्या है, तो चलिए उसकी ज़ुबानी सुन लेते हैं ये स्टोरी क्या है। Let me tell you the story. The entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:40. 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same, or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was he was so rude. He was so freaking rude. And because I have sushi with me, so I usually don't open my full door. So I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, "Bhaiya, you wait, because I need to check with the team. Either they'll make it free or I don't want the order." And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it. I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, "Bloody, I'm your slave or what? You are asking me to wait for such a long time. What the hell?" And so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge. He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house, and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises care to hear anything happening. Nobody responds to any such thing happening. And being a single girl staying, it is so dramatic. Like, people do not come up to you, so which is insane. Guys, after that thing happened, I am at the hospital, and this is my current situation. And it seems like after the x-ray, my bone is broken. So we need to do a surgery for the same, and I can't talk because the moment I start talking, my eyes are starting watering, and nose starts bleeding. So this is the update as of now. Also, guys, so when I started this video, that snippet is after I visited the hospital. So I had put in just pictures where you can see how badly I am bleeding and what my condition is literally. And I am able to talk right now just because I had been to the hospital and they gave me some high antibiotics and painkillers. Because of that, I am able to talk this much. And also, thank you so much for Bengaluru, Karnataka police. Like, the police station I visited, they were like so humble and gentle, and they literally took care of my concern, and they listened to me. And I was so scared after the incident, what happened. So they were like, "Till the time we are alive, madam, you need not worry about whatever is going on." So that's the update, and I have all the FIR copy and the doctor prescription where it says it is a major damage which has happened to me. And you guys know me, like, I being an influencer and face for you guys. If this gets ruined for me, I don't know what next stands there for me. But I would love if you guys really support and share this video as much as possible, so that this does not happen to anybody out there. And thank you so much for watching. अब जैसा कि स्टोरी की एक साइड हमने सुन ली है, अब स्टोरी की जो दूसरी साइड है वो भी जानना ज़रूरी है। तो जो ज़ोमैटो का जो डिलीवरी बॉय था उसका नाम है कामराज। तो जो ज़ोमैटो के एग्जीक्यूटिव है उन्होंने ये कहा है कि जो उसकी रिंग थी, यानी कि जो लड़की की रिंग थी, उसके वजह से उसे मार लगी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हितेजा चंद्रानी जो है वो एक बेंगलुरु बेस्ड वूमन है, जिन्होंने जो है वो इंस्टाग्राम वीडियो बनाया है जो ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय से रिलेटेड, और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। तो इसमें जो लड़का है जिसका नाम है कामराज, जो कि डिलीवरी बॉय है, उसने ये कहा है अपने एक्सप्लेनेशन में कि जैसे ही मैं अपार्टमेंट पर पहुंचा और मैंने उसे फूड हैंडओवर किया, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता था, क्योंकि उसने कैश ऑन डिलीवरी जो है वो मोड ऑफ पेमेंट रखा था, इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जो है मुझे कैश ऑन डिलीवरी के हिसाब से मुझे पैसे देगी। उसके बाद में आगे उसने ये कहा कि उसने जो है उसे पहले चप्पल से मारा है, यानी कि जो लड़का है कामराज, उसका ये कहना है कि जो लड़की है उसने उसे पहले चप्पल से मारा है। उसके बाद में कामराज जो है उसका ये भी कहना है कि उस लड़की ने जो फूड है, यानी कि जो डिलीवरी बॉय लेकर आया था फूड, वो उसने ले लिया था,
लेकिन वो पैसे नहीं देना चाहती थी और वो ये कहने की बात कर रही थी कि मैं जो है आपके जो चैट सपोर्ट है यानी कि जोमेटो चैट सपोर्ट है उससे मैं बात कर रही हूँ। तो उसके बाद में जो डिलीवरी बॉय है उसने ये कहा कि मैडम आपने जो फूड है वो ले लिया है, तो आप मुझे कृपया करके जो ये है यानी कि जो मोड ऑफ पेमेंट आपने कैश ऑन डिलीवरी किया था तो मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। तो उसके बाद में जो लड़की है उसने ये कहा कि आप क्या कर सकते हो, और वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी, ऐसा उसका कहना है। उसके बाद में जो लड़का है उसने ये भी कहा कि मैंने अपोलॉजी भी की है क्योंकि डिलीवरी जो है वो लेट हो गई थी ड्यू टू ट्रैफिक और रोड की वजह से, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सिविक के काम भी चल रहे हैं इसीलिए मुझे लेट हो गया था, ऐसा उसने अपने एक्सप्लेनेशन में भी कहा है। उसके बाद में जो आगे की बात उसने करी कि 45 टू 50 मिनट्स में ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो जाता है, लेकिन मुझे लेट हो गया है इसीलिए आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब फॉर मोर देन 2 ईयर्स। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, इसके पहले मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ है, ये मेरे साथ पहले बार हुआ है, ऐसा उस लड़के ने कहा है। उसके बाद में आगे वो ये कहता है कि मुझे समझ में आ गया था कि ये जो लड़की है ये पैसे नहीं देना चाहती थी, तो फिर मैंने आखिर ये डिसाइड किया क्योंकि ऑर्डर जो है वो भी कैंसिल हो गया था और वो फूड भी वापस नहीं करना चाहती थी, तो मैं जो है वो अपार्टमेंट के बिल्डिंग के इधर फूड ना लेते हुए वैसे ही रिटर्न आने लगा। तो एट दिस पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पर मैंने महसूस ऐसा किया कि वो जो है वो लिफ्ट के इधर आ रही थी और उसने क्या किया, हिंदी लैंग्वेज में मुझे कुछ तो भी अपशब्द कहे। उसके बाद में उसने स्लीपर भी मुझे मारकर फेंकी। उसके बाद कामराज ने ये कहा कि जब मैं मेरे को सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा था यानी कि मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त क्या हुआ कि जो उसकी फिंगरिंग है यानी कि जो लड़की की वो उसके गलती से नोज पर लग गई और ब्लीडिंग शुरू हो गया, ऐसा किसका कहना है, ऐसा कामराज का कहना है। लेकिन हमने जो लड़की की बाजू सुनी है वो कुछ अलग है और लड़के की बाजू सुनी है जो है वो कुछ अलग है। लेकिन अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात मुझे लगती है वो है अगला पॉइंट, क्योंकि अगला पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो अपार्टमेंट में नहीं है। इसके वजह से जो लड़के का इनोसेंस है या फिर जो लड़की कह रही है उसमें से कौन सही कह रहा है ये कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद में आगे कामराज ने ये कहा कि बुधवार की शाम 6:30 बजे मुझे एक कॉल आया जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज़ 1 पुलिस स्टेशन से था। वहाँ पर मुझे बुलाया गया, 2 घंटे मेरी पूछताछ हुई। हालांकि पुलिस ने मेरे साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे अब जो लीगल एक्सपेंस है उसमें मेरे कम से कम 25,000 जो है वो खर्चा होने वाले हैं, ऐसा कामराज का कहना है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे इस इंसिडेंट में ये लगती है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ऐसे चीज़ों में, क्योंकि अब इसका जो है अगर हमें निष्कर्ष निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एक ही जो उपाय है वो ये होता है कि वो होता है सीसीटीवी फुटेज। इसलिए हर अपार्टमेंट में सीसीटीवी फुटेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में एक आर्टिकल और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो ये हो रहा है कि एक हमें ऐसी केस दिख रही है जहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि निर्दोष था लेकिन उसे 20 साल जो है वो जेल में फेक रेप के केस में जो है उसने सज़ा सुनाई गई थी और उसने वो सज़ा भी काटी है। और एक यहाँ पर हमें ये वायरल होते हुए दिख रहा है कि अभी जो नई केस आई है बेंगलोर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।